دفاع ناقابل تسخیر بنانے کی جانب ایک اور بڑا قدم، پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ، میزائل ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے داغا گیا۔ LY-80 میزائل کی رینج میں اضافے سے پاک بحریہ کی صلاحیتیں بڑھ گئیں۔ جدید ڈرونز کی بھی کامیاب آزمائش، USD کا انتہائی رفتار اور درست نیویگیشن کی صلاحیت کا شاندار مظاہرہ، اعلیٰ کنٹرول اور موسمی سختیوں میں کارکردگی ثابت کر دی۔ ISPR کا اعلامیہ، نیول چیف نے ایڈمرل نوید اشرف نے افسران و جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث 11 خارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں 6 ملک دشمنوں کا کام تمام۔ کرم میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے 5 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ ہلاک دہشت گرد بھارتی پراکسی فتنہ الفارز سے تعلق رکھتے تھے۔ گولہ بارود اور اسلحہ برآمد۔ ISPR کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا وعدہ۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی فورسز کو شاباش۔ جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کے حملے میں زخمی مولانا حافظ سلطان محمد شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے مولانا اور ان کی بیٹی کو وانا میں نشانہ بنایا تھا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی جانب سے واقعے کی مذمت۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے میں ترکی بھی شامل ہونے کو تیار۔ خطے میں نئی سیکیورٹی اتحاد کی تشکیل کے لیے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل۔ معاہدے سے مشرق وسطی اور اس کے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ بلومبرگ کا تجزیہ، نئے سیکیورٹی اتحاد میں سعودی عرب مالی طاقت، پاکستان ایٹمی صلاحیت، بیلسٹک میزائل اور افرادی قوت جبکہ ترکی جدید دفاعی صنعت اور جنگی تجربہ فراہم کرے گا۔ ترک دفاعی ماہرین کا دعویٰ، پاکستان اور سعودی عرب کو ترکی کے 5th جنریشن کون فائٹر پروگرام میں شامل کیے جانے کا امکان۔ مسلم دنیا 100 سال کے بعد غفلت سے بیدار ہو رہی ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا انٹرویو، ایران کی صورتحال میں اسرائیلی کردار کی مخالفت، موساد کی سازش ناکام بنانے میں ایران کو مدد کی پیشکش کر دی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف ملکین مظاہروں میں شدت، دائرہ 100 سے زائد شہروں تک پھیل گیا۔ زاہدان، شیراز، مشہد اور کرج سمیت دیگر شہروں میں جلاؤ گھراؤ، صورتحال بدستور کشیدہ۔ 2 ہفتے سے جاری پرتشدد مظاہروں میں مزید 14 زندگیاں نگل لیں، اموات کی تعداد 62 ہو گئی۔ کئی شہروں میں حکومت کے حامی بھی سڑکوں پر آ گئے۔ ملک میں انٹرنیٹ سروس دوسرے روز بھی بند، غیر ملکی پروازیں منسوخ۔ عراقی ملیشیا حشد الشعبی کا احتجاج کو چلنے کے لیے ایرانی حکومت کی مدد کے لیے افرادی قوت فراہم کرنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہنگاموں کو اسرائیلی سازش کا نتیجہ قرار دے دیا۔ امریکہ کو ایران کے داخلی معاملات میں روکا جائے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس کو خط۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران میں مداخلت کی دھمکی دے دی۔ مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز پر زور۔ لگتا ہے کہ ایران میں عوام مخصوص شہروں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ایران میں مداخلت کا مطلب فوج اتارنا نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مظاہروں کی حمایت کے بعد پاسداران انقلاب نے ملکی دفاع کو سرخ لکیر قرار دے دیا۔ ایرانی عوام دشمن کی سازش کو ناکام بنائیں گے۔ ایرانی مسلح افواج کا ملکی سالمیت اور دفاع کے لیے عزم کا وعدہ۔ پاکستان نے شہریوں کو ایران کے غیر ضروری سفر سے روک دیا۔ ایران میں مقیم پاکستانیوں کو بھی غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کی ایڈوائزری جاری۔ شہریوں کو سفارت خانے اور قونصل خانوں سے رابطے میں رہنے کا پیغام۔ پاکستانی سفارت خانے نے کرائسس مینجمنٹ سیل بنا دیے۔ شہریوں کے لیے اہلکاروں کے فون نمبر بھی جاری، کسی بحران کی صورت میں رابطوں کا پیغام۔ ایران امریکہ کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان ایک بار پھر توجہ کا مرکز۔ ایران کے ساتھ وینزویلا جیسا رویہ نہ صرف ناکام ہوگا بلکہ خطے میں بحرانوں کو جنم دے گا۔ واشنگٹن کو ایسے علاقائی شراکت داروں سے فائدہ اٹھائے جن کا
استحकाम में हकीकी मुफाद हो। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत और मुअस्सर सिफारतकारी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान की मुलाकात, सूबे की सियासी सूरत हाल और मसाइल पर तबादला ख्याल। वफ़द ने सूबाई हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील तरजीहात में शामिल। वफाकी हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के तहत इन मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए अहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। एक्सचेंज रिजर्व्स हो, इंटरेस्ट रेट हो, इन्फ्लेशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ इन सेफ हैंड्स। और ये एक टीम वर्क है, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म इसको लीड कर रहे हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इसमें बड़ी काविश है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ओवरऑल मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल है इकॉनमी को लेके। जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है, टांगे की सवारियाँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को तांगा पार्टी करार दे दिया। पीटीआई से निमटने की प्रैक्टिस हो गई। अडियाला के बाहर अमन अमान की सूरत हाल पैदा हुई तो निमट लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में गुफ्तगू। कुरान में रियासत के खिलाफ लड़ने वालों के बारे में वाज़ेह अहकामात हैं, उनका काम मुज़ाकरात नहीं कुछ और है। सहाफ़ी को जवाब। स्टेट के ख़िलाफ़ जब भी कोई हथियार उठाता है तो वो कुरान मजीद में और इस्लाम में उसका बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका हल क्या है और उसको किस तरह हैंडल करना है। तो अब छोड़ दें कि मेरी सोच क्या है, बाकी लोगों की सोच क्या है। कुरान मजीद के हिसाब से देख लें तो मेरे ख्याल में सबको जवाब मिल जाए। बस मेरा काम तो दूसरा वाला मुज़ाकरात जिनका काम है वो करें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुल्की मसाइल से निपटने के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ पेश कर दी। फ़ौज, अदलिया और इक़्तिसादी माहिरीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर रूल्स तय करने पर जोर। सरबराह महमूद अचकज़ई ने मुल्क बचाने के लिए आइन का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, मुल्क तबाह करने वाली कुव्वतें अब आइन बर्बाद करने के दर पे हैं। मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवामी मैंडेट तस्लीम न करने की वजह से मुल्क टूट चुका। अवाम भी कौमी बहरानों के जिम्मेदार हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का मुल्क में आज़ादी इज़हार राय यकीनी बनाने पर जोर। सिर्फ देर इस चीज की है कि अचकज़ई साहब या इनका जो TTAP के लोग हैं वो वहाँ पे जाके बताएं कि जी बिल्कुल हमने हुकूमत की मुज़ाकरात की जो दावत है उसको कबूल किया है और हम मुज़ाकरात का दौर शुरू करना चाहते हैं। पार्लियामेंट में ही शुरू होंगे मुज़ाकरात, उसी कमेटी रूम में होंगे और उन्हीं कमेटीज़ के साथ होंगे जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो स्पीकर ने तहलील नहीं की। हुकूमत ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। बैरिस्टर अकील मलिक ने सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई को कौमी असम्बली के सेशन में आने की दावत दे दी। बातचीत शुरू हुई तो आगे का रास्ता भी निकल आएगा। वज़ीर-ए-आज़म के कानूनी मुशीर की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पीपल्स पार्टी पर नई आइनी तरमीम के जरिए आइन का ढांचा हिलाने का इल्ज़ाम। सिंध के अवाम अब पीपल्स पार्टी को मजीद देखना नहीं चाहते। सोहेल आफरीदी का जामशोरों में जलसे से खिताब। PTI को कल कराची के बाग जना में जलसे की इजाजत मिल गई। इश्तियाल अंगेज तकारीर, मवाद और फिरका वाराना गुफ्तगू की इजाजत नहीं। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर ममनू। जलसे के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना मुंतज़मीन की जिम्मेदारी होगी। प्रोग्राम मुकर्ररा वक्त से पहले खत्म करना लाजिम होगा। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इजाजत मनसूख करने का इख्तियार ज़िले इंतजामिया के पास होगा। डेप्यूटी कमिश्नर ईस्ट ने जलसे की NOC जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ को बाग़ जिना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त न देने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ कराची को 6 घंटे यरगमाल बनाया गया। सोहेल आफरीदी की रैली में 500 से ज़्यादा अफराद न थे, उनमें से भी अक्सरियत अफ़गान बाशिंदों की थी। राजा खलीक अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, PTI दहशतगर्दों की हामी करार।
सिंध हुकूमत का सूबे में पीटीआई की आईनी हदूद में किसी भी सरगर्मी की मुखालफत न करने का ऐलान। पीटीआई का मिजाज जारहाना है, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी और बद कलामी से इज्तनाब करना पड़ेगा, नासिर हुसैन शाह ने खबरदार कर दिया। पीटीआई से शदीद इख्तलाफात के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उनके ओहदे के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उनको हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पीटीआई क़यादत फरवरी जैसे एहतजाजी कॉल से कारकुनान को मुश्किलात में ना डाले, वज़ीर बल्दियात सिंध का मशवरा। नेशनल डायलॉग कमेटी के रहनुमा फवाद चौधरी ने कराची में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तकबाल को सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम करार दे दिया। बिलावल की सियासत में भुट्टो की सियासत नजर आई। फवाद चौधरी ने आगे बढ़ने के लिए सियासी जमातों में डायलॉग को वाहिद रास्ता करार दे दिया। पीटीआई ख़वातीन कैदियों की रिहाई और मफरूर ख़वातीन की सजाएं मुअत्तल करने की तजवीज़। लाहौर में सूबाई असेंबली के हलका 167 पर लीगी उम्मीदवार मलिक शफी बिला मुकाबला कामयाब करार। इलेक्शन कमीशनर का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अवाम को मुबारकबाद। मलिक शफी की कामयाबी अवामी खिदमत का समर करार। अवाम की खिदमत का सफर तेज करने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे के बेशतर शहरों में कैथ लैब फंक्शनल करने की तैयारियां। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी पीसीआई की भी सहूलत मैसर होगी। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज की जान बचाई जा सकेगी। मरियम नवाज के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट में बनने वाली स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक कैथ लैब में आलमी SOPs के मुताबिक अमराज क़ल्ब का बेहतरीन इलाज होगा। पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफे पर तालीमी इदारों की छुट्टियां 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गईं। तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम के मुताबिक फैसला सोशल मीडिया पेज पर अवामी सर्वे की बुनियाद पर किया गया। अवामी सर्वे में तकरीबन 87% अफराद ने छुट्टियों में तोसी के हक में राय दी थी। कराची में मौसम सरमा अपने भरपूर जोबन पर आ गया। 7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ ठंडी हवाओं ने शहरियों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। आइंदा मजीद चंद रोज मौसम बदस्तूर सर्द रहने का इम्कान। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 3,500 रुपए फी मन मुकर्रर। गंदम खरीदी प्राइवेट सेक्टर से शफाफ निजाम के तहत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुआविन खुसूसी सलमा बट की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पेशावर के थाना रेगी की हुदूद शाही बाला में फायरिंग से CTD पुलिस का एहलकार शहीद। मुल्जिमान की तलाश के लिए छापे। मंदी भाउद्दीन के इलाके साहना में 17 साल लड़की से इज्तिमाई ज्यादती। 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा ना किया तो रूस या चीन काबिज हो जाएंगे। नहीं चाहता कि चीन या रूस अमेरिका के पड़ोसी बने। सदर ट्रंप ने यूरोपीय मुल्क पर कब्जे का प्लान वाज़ेह कर दिया। ग्रीनलैंड वालों को अच्छा लगे या बुरा, पहले प्यार से डील की कोशिश करेंगे, वो ना माने तो सख्ती पर मजबूर हो जाएंगे। अमेरिकी सदर ने ग्रीनलैंड से मुतालिक डेनमार्क का दावा भी मुस्तरद कर दिया। कहा कि वो ना होते तो आज नेटो का वजूद खत्म हो चुका होता। रूस और चीन को वेनेजुएला का तेल खरीदने की पेशकश। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने और 8 तैयारे गिरने का जिक्र कर दिया। I settled 8 wars, some just getting ready to start, like India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air, and I got it done in rapid order without nuclear weapons. अमेरिका में डूम्सडे तैयारे की परवाज़ ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। एटमी हमले से महफूज डूम्सडे सर्द जंग के जमाने में अमेरिकी सदर के लिए तैयार किया गया। जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेस तैयारा लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते देखा गया। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को आज़ाद तस्लीम करने पर OIC इजलास गैर मामूली आज होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार शिरकत के लिए जद्दा पहुँच गए। सऊदी अरब पहुँचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और कौंसल जनरल मुस्तफ़ा रब्बानी ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार OIC रुकन ममालिक के अपने हम मनसबों से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे।
हिंदुत्वा नजरिए के जेर असर खित्ते का अमन दाव पर लगाने वाले भारत का शेराजा बिखरने लगा। मणिपुर पर भी भारत के हाथ से निकलने लगा। रियासत में इंतहा पसंद हिंदुओं के ईसाइयों पर हमले 3 बरस बाद भी खाना जंगी की कैफियत बरकरार। भारत के खिलाफ नफरत इंतहाई हदों को छू गई। दिल्ली सरकार से दूरियां बढ़ने लगी। बरतानवी अखबार द इकोनॉमिस्ट ने भारतीय रियासत की कमजोर होती बुनियादों का भांडा फोड़ दिया। अमेरिकी रियासत मिनीसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ एहतजाज। प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन का बर्तन बजाकर एहतजाज। आइस के खिलाफ नारे। PSL ड्राफ्ट 30 जनवरी को लाहौर में होने का इम्कान। वेन्यू और तारीख का बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्किल। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने वाले उस्मान ख्वाजा की बिग बैश लीग में शानदार एंट्री। पहले ही मैच में 30 गेंदों पर 50 जड़ दी। उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान सुपर लीग में भी एक्शन में नजर आ सकते हैं। मोहम्मद रिजवान बिग बैश लीग में 36 बार नाकाम। मेलबर्न रेनेगेड्स की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ सिर्फ 21 रन ही बना पाए। कतर के नासिर अल अतिया ने सऊदी अरब डकार रैली में सबको पीछे छोड़ दिया। छठे मरहले में कामयाबी हासिल कर ली। केन्या में प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट के दौरान मिस्र के नॉन प्रोफेशनल प्लेयर्स की एंट्री। खिलाड़ियों से टेनिस की बुनियादी शॉट्स भी नहीं लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।